हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे बैक्टीरिया के बारे में। हम सब जानते हैं कि बैक्टीरिया दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड लीस्ट डिफरेंशिएटेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड दे आर द फर्स्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ। दे शो टिपिकल प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर्स। ये प्रोकैरियोट्स में आते हैं ये, और प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर्स शो करते हैं। एंड दे हैव रिसेम्बलेंस विथ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। दोनों को रिसेंबल करते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स को। एंड दे हैव बीन प्लेस्ड इन द सेपरेट क्लास साइजोमैसिटीज अंडर थैलोफाइटा। और अगर हम जनरल कैरेक्टर्स की बात करें बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया जो हैं दे आर omni present, found in all possible habitats one can think of, and most of the bacteria have heterotrophic mode of nutrition. That is, they obtain their ready-made food directly from external agency and may be parasitic, saprophytic or symbiotic. Some bacteria are autotrophic also. They possess bacteriochlorophyll A, a photosynthetic pigment by which they can produce their own food by the process of photosynthesis. Bacteria are unicellular and morphologically least complex of all the living organisms. The cell wall of bacteria is rigid and made up of two types of polymers: amino acid subunits and saccharide subunits. Cellulose, characteristic of the cell wall of higher plants, is absent in bacteria. Cellulose नहीं होता है इसमें. And the well organized nucleus, characteristic of eukaryotes, is lacking, and discrete chromosomes are also absent. The nuclear material is not surrounded by nuclear membrane. ये सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो हैं वो प्रोकैरियोट्स के हैं, जिसमें क्या है कि वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता है, क्रोमोसोम्स जो होते हैं डिस्क्रीट होते हैं, एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है नहीं पाई जाती है, एंड क्लोरोफिल पिगमेंट्स इफ प्रेजेंट दे आर लोकेटेड विद इन involuted cytoplasmic membrane. Well organized plastids are also absent. Other cell organelles like mitochondria, they are also absent, and their function is carried out by complex localized enfoldings in the cell membrane known as mesosomes. Mesosomes पाए जाते हैं इसमें बैक्टीरिया में, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन टेक ओवर करते हैं. The organelles like endoplasmic reticulum and Golgi apparatus, they are also absent. Ribosomes are abundant in bacterial cell, but they sediment somehow more slowly in a centrifuge than do ribosomes or other organisms. और अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो बाइनरी fission is the most common method of multiplication. True sexual reproduction is absent in bacteria. However, recombination of genetic material by conjugation, transformation and transduction is present. ट्रू सेक्सुअल प्रोडक्शन ही होता है क्योंकि इनमें सेक्स ऑर्गन्स नहीं पाए जाते, लेकिन फिर भी जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है वो पाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन. द मोटाइल बैक्टीरिया में possess one or more flagella composed of 8 parallel chains of flagellin, अ प्रोटीन मॉलिक्यूल. मोटाइल बैक्टीरिया जो होते हैं उसमें एक या एक से ज़्यादा फ्लैजिला पाए जाते हैं लोकोमोशन के लिए. उसके बाद ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया possess minute hair like cytoplasmic appendages known as pili extruding through the cell wall. These appendages are composed of a protein called fibrillin. अब हम शेप की बात करते हैं बैक्टीरिया की. द बैक्टीरियल सेल्स शो कंसिडरेबल वेरिएशन in their shape, but all individuals of a species have approximately the same shape. Thus, from the point of view of their identification, shape of the bacteria is an important characteristic. Although conventional light microscope provides little structural details, it is possible to establish the major morphological groups in this on this basis. Now, अगर हम साइज़ के बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया आर वेरी स्मॉल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स. An average bacterial cell ranges from 0.5 to 2 micrometer in diameter. A single drop of water may contain as many as 5 into 10 raised to power 6 bacteria, and their size also varies with the shape.
नाउ फिर हम बात करते हैं, अगर अगेन वी स्विच ऑन टू द शेप ऑफ द बैक्टीरिया. First of all, we take the rod shaped bacteria. In this diagram we are seeing the bacillus type. That means they are the rod shaped bacteria. This is probably the most common form of bacteria. These are rod shaped, cylindrical or elongate, and are motile or non motile cells. The rods may have rounded or blunt ends. Some are very short and almost indistinguishable from the spherical bacteria, while others are long and narrow. An average bacillus is about 1.5 micron meter in length and 0.5 micron meter in diameter. ये जो आप देख रहे हैं, these are the bacillus type of bacteria. और एग्जाम्पल्स अगर हम लें तो बेसिलस एंथ्रेसिस जो है वो, और दूसरा लैक्टोबैसिलस, दे आर द कॉमन एग्जाम्पल्स. और बेसिलस बैक्टीरिया को अगेन वी डिवाइड इनटू टू कैटेगरीज. डिप्लोबैसिलस, व्हेन बेसिलस बैक्टीरिया, जैसे अपन भी देख रहे हैं बी वाले डायग्राम में, जो रॉड शेप्ड बैक्टीरिया हैं दो एक साथ हैं, और ऐसे बैक्टीरिया व्हेन दे आर टू दे आर कॉल्ड डिप्लोबैसिलस. एंड कॉरिनीबैक्टीरियम डिप्थेरी इज़ द कॉमन एग्जाम्पल. और अगर ये चेन में है इस तरह से, जैसे आप सी डायग्राम देख रहे हैं, स्ट्रेप्टोबैसिलस, इसको बोलेंगे व्हेन स्ट्रेप्टोबैसिलस लॉन्ग चेन्स में पाए जाते हैं. और द कॉमन एग्जांपल है वो है दैट इज़ बेसिलस ट्यूबरक्लोसिस. नेक्स्ट जो शेप है, इट इज़ कॉकस और स्फेरिकल बैक्टीरिया. द स्फेरिकल और एलिप्सॉइडल बैक्टीरिया आर कॉल्ड कॉकाई. सिंगुलर इज कॉकस. They measure 0.5 to 2.25 micron meter in diameter. They are non-motile, atrichous, and often occur in chains or in clusters of variable size and shapes. On the basis of arrangement and the number of cells in the cluster, the cocci are classified into the 6 groups. जिस तरह से आप देख रहे हैं, सबसे पहले है माइक्रोकोकाई. when cocci are single, जिस तरह से ए डायग्राम देख रहे हैं, एक ही स्फेरिकल बैक्टीरिया अलग अलग हैं, दे आर मोनोकोकस. देन अगर इफ़ दे आर टू इन नंबर, व्हेन कोकाई अकर इन पेयर्स, पेयर में है, देन दे आर डिप्लोकोकाई. और एग्जांपल इसका है डिप्लोकोकस निमोनी. देन स्ट्रेप्टोकोकस है व्हेन बैक्टीरिया अकर इन लॉन्ग चेन्स. सी डायग्राम आप देख रहे हैं, सारे जो बैक्टीरिया हैं दे आर इन लॉन्ग चेन. They are called as Streptococcus, and the common example is Streptococcus lactis. Then you'll find a Tetracoccus when they form the groups of 4 cells. D डायग्राम आप देख रहे हैं, 4 सेल्स हैं साथ में, तो then they are Tetracoccus और Tetracocci. और then an irregular group of many spherical bacteria is known as Staphylococcus. बहुत सारे बैक्टीरिया सेल्स इरेगुलर फॉर्म में ग्रुप में हैं, देन दे आर स्टेफाइलोकोकस लाइक द बंच ऑफ ग्रेप्स. देन सेक्रीना, व्हेन स्फेरिकल बैक्टीरिया डिवाइड इन 3 planes इन अ रेगुलर पैटर्न प्रोड्यूसिंग अ क्यूबॉइडल अरेंजमेंट. सेक्रीना एफ जो आप देख रहे हैं, सेक्रीना है, ये क्यूबॉइडल अरेंजमेंट है, 4 आगे 4 पीछे क्यूब बन जाता है, देन दैट इज कॉल्ड एज द सेक्रीना टाइप ऑफ bacteria, and the common example is Saccharini lutea. ये जो आप देख रहे हैं, these are the spherical or the helical bacteria. These are slightly larger and elongated spiral rods. Spiralum has more than one turn of the helix. It is about 1.5 micron meter in diameter and up to 15 micron meter in length. These bacteria have one or more flagella at the pole. They usually occur singly or in small chains, but are seldom found in groups. जो आप देख रहे हैं ये स्पाइरल टाइप ऑफ बैक्टीरिया, ये एक साइड या दोनों साइड के पर उनका फ्लैजिला हो सकता है. एंड द कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ एग्जाम्पल ऑफ स्पाइरल बैक्टीरिया और हेलिकल बैक्टीरिया इज स्पाइरलम अंड्यूलम. Besides above mentioned 3 major morphological types, bacteria also occurs in the following shapes. सबसे पहले Vibrios. These are slightly covered rods of half turn. They resemble the sign of comma.
और इसलिए इनको कॉमा बैक्टीरिया भी कहा जाता है। जिस तरह से आप देख रहे हैं विब्रियो जो है ये छोटा जो कॉमा बनाते हैं अपन उस शेप का होता है, इसलिए हम इसको कॉमा बैक्टीरिया भी कहते हैं। अब विब्रियो जो होता है इसमें बियर्स अ सिंगल फ्लैजिलम एट दैट स्टेप। जो विब्रियो होता है एक ही फ्लैजिलम होता है, जिस तरह से डायग्राम में आप देख रहे हैं इसके टिप के ऊपर, एंड इज़ अबाउट 10 माइक्रोमीटर इन लेंथ एंड 1.5 to 1.7 माइक्रोमीटर इन विड्थ। और इसका जो एग्जाम्पल है दैट इज़ द विब्रियो कोलाई और विब्रियो कोलेरी। उसके अलावा जो शेप होती है इट इज़ फिलामेंटस। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं सच एज बैगिटोटा एंड थायोथ्रिक्स दे आर फिलामेंट। जो सेल्स होते हैं एक फिलामेंट के फॉर्म में, जिस तरह से एल्गी के फिलामेंट्स अपन देखते हैं उस तरह से फिलामेंटस फॉर्म में भी बैक्टीरिया पाया जाता है। और अगर अलग अलग शेप है तो उसको हम बोलेंगे प्लियोमॉर्फिक, क्योंकि सब कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं दे आर कैपेबल ऑफ चेंजिंग दियर शेप एंड साइज टेम्परली इन रिस्पॉन्स टू द चेंजेस इन द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। जिस तरह से एनवायरनमेंट होता है वो अपना शेप चेंज कर लेते हैं, तो ऐसे बैक्टीरिया को हम बोलते हैं प्लियोमॉर्फिक। एज सच ए सिंगल बैक्टीरिया में अकर इन मोर देन वन शेप इन इट्स लाइफ साइकिल। अपने लाइफ साइकिल में एक से ज़्यादा शेप अकर कर लेते हैं वो। और एसिडोबैक्टर जो है एसिडोबैक्टर में अकर इन अ बैक्सीलस रॉड, जो एग्जाम्पल देख रहे हैं अपन वो रॉड शेप का भी हो सकता है, और इट कैन बी स्ट्रेप्टोबैसिलस डिपेंडिंग ऑन द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा शेप ले लेता है। बैक्टीरिया के अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो बैक्टीरिया आर कॉस्मोपोलाइटन इन डिस्ट्रीब्यूशन, और सारे नेचुरल हैबिटेट्स में ये पाया जाता है। Their wide distribution is primarily due to the fact that they can withstand great extremes of temperature, moisture, acidity and salinity and are adapted to wide variety of energy sources. ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ऐसा कोई स्थान ग्लोब में नहीं है कि जहाँ पे बैक्टीरिया नहीं मिलता हो, और नेचुरल हैबिटेट्स में हर जगह पाया जाता है। वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है इसका, और वो कारण यही है कि इट कैन विथस्टैंड एक्सट्रीम टेम्परेचर्स और मॉइस्चर, सैलिनिटी, एसिडिटी, सब जो एक्सट्रीम कंडीशंस हैं उसको वो टॉलरेट कर लेता है। और इट इज़ अडेप्टेड टू वाइड वैरायटी ऑफ एनर्जी सोर्सेज। कई सारे वाइड वैरायटी है उसके एडेप्टेशन के लिए। एंड दे अकर इन द एटमॉस्फेयर टू द हाइट ऑफ अबाउट 6 किलोमीटर्स एंड ऑन द सी फ्लोर 5 किलोमीटर्स। और हर सी में भी मिलेगा आपको, एयर में भी मिलेगा, एवरीवेयर यू कैन फाइंड द बैक्टीरिया। And some are adapted to normal aerobic environment and others thrive well in absence of oxygen. और ऑक्सीजन है तो भी वो सर्वाइव करते हैं, जिनको हम एरोबिक बैक्टीरिया बोलते हैं। और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी एरोबिक जो बैक्टीरिया हैं वो भी क्या करते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन दे कैन सर्वाइव एंड दे कैन एग्जिस्ट इन हॉट स्प्रिंग्स ऑल्सो, एंड दे कैन ऑल्सो सर्वाइव इन बिलो फ्रीजिंग पॉइंट्स। जब बहुत ठंड है, जहाँ पे बहुत फ्रीजिंग पॉइंट से बिलो टेम्परेचर है, वहाँ पे भी क्या कहते हैं वो सर्वाइव कर जाते हैं। उसके अलावा जो इनकी पीएच रेंज है टॉलरेंस की वो भी बहुत ज़्यादा है। इट रेंजेस फ्रॉम 0 to about 11. So this was about the common or the general characters and the shape and the distribution of bacteria.